So we now move on to the other actions of the sympathetic and parasympathetic on the target organs. Okay. एड्रीनो रिसेप्टर्स क्या होते हैं बच्चे? एड्रीनो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये बॉडी में तो होते ही हैं, अब एनवायरमेंट की तो हम पढ़ते ही नहीं है। जवाब सही है, बिल्कुल बॉडी के अंदर ही होते हैं। नथिंग रॉन्ग विद योर आंसर। So where do you find adrenoceptors? Of adrenal gland. Is it? हाँ? नहीं, नहीं, something related to adrenal gland. एड्रीनोसेप्टर्स कहाँ होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड में होते हैं। डू यू एग्री विद द आंसर? नहीं, तो फिर क्यों नहीं? बताओ सही क्या जवाब। अभी पिछली क्लास में पढ़ाया इसलिए पूछ रहा हूँ। भाई आप लोग सवाल नहीं पूछे तो मैं पूछ, कोई तो पूछेगा सवाल। Adrenoceptors are the receptors responding to the neurotransmitter of the sympathetic nervous system, noradrenaline or adrenaline. Those receptors we have named as adrenoceptors or adrenergic receptors. They are on the effector organs. Effector and autonomic nervous system are either muscle fibers in the body, cardiac muscle or glands. So these are the three targets for the autonomic activity, and on these target organ cells the receptors are located, which combine with the neurotransmitter released by the autonomic nervous system, specifically sympathetic nervous system, which is the norepinephrine. तो वो सारे रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा रिसेप्टर, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ये पांचों मिला के एड्रिनोसेप्टर्स कहलाते हैं। ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड में वो सिंपैथेटिक गैंग्लिया की तरह बिहेव करती है, वहां निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, एड्रिनो रिसेप्टर नहीं होते। नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड में, adrenal gland is behaving like a sympathetic ganglia, so it contains nicotinic receptors acted upon by the acetylcholine. The transmission in the autonomic ganglia may be sympathetic or parasympathetic. It is cholinergic transmission. Acetylcholine is the neurotransmitter, while the neurotransmitter of the sympathetic nervous system is norepinephrine. It is not adrenaline, it is not dopamine. But these two substances which I have just named act upon the same receptors, and combinedly they are known as, collectively they are known as catecholamines, because of the nucleus of the molecule from the getting synthesized. So there are three catecholamines in the body: noradrenaline, adrenaline and dopamine. All are capable of acting on the adrenoceptors. Of course, the grade of activity will be different. किसी का एक्शन ज्यादा आएगा, किसी का एक्शन कम आएगा, किसी का अल्फा पे ज्यादा है, किसी का बीटा पे ज्यादा है। आई बात समझ में? So that is the adrenoceptors. So on the left side, the effects are there of the sympathetic nervous system. ये इधर sympathetic के इफेक्ट है, इधर parasympathetic के इफेक्ट है, और parasympathetic के इफेक्ट में कुछ ऐसा भी दिखाया है जहां parasympathetic सप्लाई नहीं जाती। There are many parts of the body which do not get parasympathetic supply, but the parasympathetic neurotransmitter acetylcholine brings about its action if it is given. दूसरी बात, क्लिनिकली ह्यूमन बींग्स में एसिटाइलकोलिन कभी यूज नहीं होती। इट इज नेवर टू बी यूज्ड।
It is highly toxic and will kill immediately. आई बात समझ में? एसिटाइल कोलिन कभी यूज नहीं करती, बट एनालॉग्स ऑफ द एसिटाइल कोलिन, उससे मिलते जुलते जो सिंथेटिक कंपाउंड है, उनकी एक्टिविटी हम मॉनिटर कर सकते हैं डोज के हिसाब से, और वो क्लिनिकली यूज होते हैं, ठीक है, मगर एसिटाइल कोलिन कभी यूज नहीं होती. So on the heart we have seen the actions. Of course, heart contains both beta 1 and beta 2 receptors for sympathetics. All activities of the heart are increased by the sympathetic stimulation, that is heart rate, force of contraction, rate of conduction and the excitability, all are increased, resulting into ultimately increase in the stroke volume and the cardiac output. That is the essential feature. On the other hand, stimulation of the vagus nerve, because vagus is synonymous with the parasympathetic as far as most of the body parts are concerned. वेगस का मतलब है कि ज्यादातर बॉडी में जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जाती है वो वेगस नर्व से जाती है. सो व्हेन वी स्टिमुलेट द वेगस नर्व टू द हार्ट, all the features or activity of the heart are decreased. Decrease in the heart rate, partially decrease in the force of contraction, because we have said that parasympathetic supply to the ventricular muscle is very sparse, बहुत कम होती है, इसलिए ventricle space पैरासिम्पैथेटिक या वेगस का इफेक्ट करीब करीब नहीं होता, मगर एट्रियल मसल्स में सप्लाई होती है, कंडक्शन टिश्यू में सप्लाई होती है, नोडल टिश्यूज में सप्लाई होती है, उसके इफेक्ट आते हैं. तो वेगस स्टिमुलेशन कॉजेज डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, एट्रिया डाला है मैंने यहाँ पे, कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीजेस, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट फॉल्स, एंड देयर में बी ए कार्डियक अरेस्ट. इफ द स्ट्रॉन्ग वेगस स्टिमुलेशन इज देयर, हार्ट कैन स्टॉप in diastole of course. Coronary vessels, whenever sympathetics are stimulated, because sympathetics are usually getting stimulated under conditions of the alarm reaction. जब बॉडी के लिए इमरजेंसी हो तो स्टिमुलेट ज्यादा होते हैं, अदरवाइज बेसल एक्टिविटी चलती रहती हो तो बॉडी के अंदर होती है. उस कंडीशन में कॉर्नरी वेसल्स डायलेट होती हैं, बिकॉज हार्ट हैज टू वर्क मोर, सो इट रिक्वायर मोर ब्लड सप्लाई. तो कॉर्नरी वेसल जो हार्ट को सप्लाई करती हैं वो डायलेट होती हैं और ब्लड फ्लो बढ़ता है. सो कॉर्नरी वासोडाइलेटेशन इज एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक. इट इज नॉट अ डायरेक्ट इफेक्ट, because coronary vasodilation occurs in response to the metabolic demand of the heart. जब हार्ट ज्यादा काम करेगा तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा साथ ही साथ. So if purely alpha receptor stimulation is there, which never occurs in the intact human being, there will be coronary vasoconstriction. Otherwise it is always coronary vasodilatation under sympathetic effect. vasoconstriction intact में कभी नहीं होता sympathetic से. In the parasympathetic, acetylcholine of course will cause vasodilatation. मैंने बोला acetylcholine क्योंकि parasympathetic supply blood vessels को नहीं जाती. Skin always vasoconstriction by the alpha 1 receptor. Cutaneous vasoconstriction is a prominent feature of the sympathetic. In the parasympathetic there is no supply, but sympathetic cholinergic fibers are going to the skin blood vessels, so there is a कोलिनर्जिक वासोडाइलेटेशन. बात समझ आ रही है? पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करें तो स्किन की ब्लड वेसल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जाती ही नहीं है वहां पे. मगर अगर एसिटाइल कोलिन या उसके एनालॉग दें तो वो आपको स्वेटिंग बढ़ा देगी. दोज फाइबर्स गोइंग देयर ऑफ द सिंपैथेटिक, दे आर कोलिनर्जिक फाइबर. यहाँ पे नॉरएड्रेनालिन रिलीज नहीं होती, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन इज एक्टिंग एज ए न्यूरोट्रांसमीटर of postganglionic sympathetic fibers. So there is a, I have written as cholinergic vasodilatation. Skeletal muscle blood vessels, depending upon the metabolic activity, usually sympathetic stimulation will cause vasoconstriction in the skeletal muscle blood vessels. Parasympathetic, again cholinergic vasodilatation is there. But when the exercise is there, then there is a increase in the skeletal muscle blood flow. That is skeletal muscle vasodilatation occurring via the beta 2 receptors. Sorry, अरे कहाँ गया यार? Beta 2 receptor causes vasodilatation. So during exercise there is increase in the skeletal muscle blood flow by the sympathetic vasodilatation. Of course parasympathetic supply is not there, but acetylcholine will cause again vasodilatation. Cerebral blood vessels of the brain, they have got alpha 1 receptors, they will cause vasoconstriction. But again there is a bit again that cerebral blood vessels have got
very little effect, or they are little affected by autonomic stimulation, because the blood flow to the brain is mainly controlled by the metabolic activity of the brain itself rather than the autonomic nervous system. Pulmonary blood vessels of the lungs. Alpha receptors causes vasoconstriction of the blood vessels of the lungs, while the beta 2 receptor stimulation will cause vasodilatation. Now, what will happen exactly when sympathetics are stimulated depends upon the magnitude or number of the receptors which are present. If the alpha receptors are predominant, there will be pulmonary vasoconstriction. If the beta 2 receptors are predominant, there will be vasodilatation. We know that beta 2 are inhibitory in nature, beta 1 are excitatory, alpha 1 are excitatory in nature. Then splanchnic. Splanchnic means blood vessels to the gut. Intestines को जो सप्लाई जा रही है उसको हम splanchnic circulation कहते हैं. And splanchnic circulation, whenever sympathetics are stimulated, they will cause vasoconstriction. Splanchnic vasoconstriction is a feature of the sympathetic effect, resulting into diversion of the blood from the non-essential part to the more essential part of the body, that is heart and the brain. वहाँ पे divert होता है blood non-essential part से. Salivary gland, पैरासिम्पैथेटिक का कोई इफेक्ट नहीं है स्प्लैंक्निक के ऊपर. Salivary gland, sympathetics, vasoconstriction of course, क्योंकि जब भी आपको चिंता, फिकर, टेंशन होता है तो मुंह सूख जाता है आपका. Mouth becomes dry because sympathetics causes vasoconstriction, and on the glandular tissue also secretion is decreased. There is decreased salivary secretion because of both reasons, inhibition of the gland as well as vasoconstriction. तो blood flow घटता है तो भी secretion घट जाता है आपका. So mouth becomes dry. Parasympathetic supply is there and it causes vasodilatation and increase in the secretion of the salivary glands also. Renal blood vessels, always vasoconstriction. Sympathetic will always cause vasoconstriction. Parasympathetic supply is not there, no effect will be there. Penile blood vessels, males के अंदर होता है. Sympathetic vasoconstriction, parasympathetic vasodilatation and erection of the penis is there. Veins, vasoconstriction. हमेशा sympathetic will always cause venoconstriction in the body, everywhere. बॉडी में जहां भी वेन्स मौजूद हैं, सिंपैथेटिक सप्लाई वहां जाती है, और वहां पे अगर सिंपैथेटिक को स्टिमुलेट करें तो वो वीनोकंस्ट्रिक्शन करेगा, उनका डायमीटर घटाएगा, जिसका मतलब ब्लड फ्लो सेंट्रल पार्ट की तरफ ज्यादा है बजाय पेरिफेरी के. पैरासिम्पैथेटिक ऑफ कोर्स नो इफेक्ट इज देयर. दिस इज एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट. ब्रोंकियल मसल, जब आदमी इमरजेंसी में भाग रहा होता है तो सांस ज्यादा आनी चाहिए, आराम से आनी चाहिए, कम एनर्जी खर्च करने पे आनी चाहिए. तो डायमीटर ऑफ द एयरवे नीड्स टू बी इंक्रीज so that less resistance is there to the flow of the air, less work will be required by the respiratory muscles. So there is a bronchodilation, is a feature of the sympathetic nervous system. So sympathetic stimulation causes relaxation of the bronchial muscles, which is known as the bronchodilation, while parasympathetic always causes bronchoconstriction. Parasympathetic bronchoconstriction करता है, sympathetic bronchodilation करता है, और सिंपैथेटिक ब्रोंकोडायलेशन के साथ में क्या करेगा, ग्लैंड का सीक्रेशन भी घटाता है. तो अगर ग्लैंड का सीक्रेशन बढ़ेगा तो आपके एयरवे को ब्लॉक कर देगा, तो आपका पहला इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा. तो सीक्रेशन घटता है और स्मूथ मसल जो है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की डायलेट रिलैक्स होती है, जिससे कि डायलेटेशन हो जाता है. जबकि ये क्या आ गया, हाँ ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक कॉजेज bronchoconstriction and increase in the bronchial secretion. Bronchial secretion बढ़ते हैं पैरासिम्पैथेटिक से, जिसमें कि 9th और 10th दोनों नर्व की सप्लाई जाती है. अब आते हैं GIT के ऊपर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. Two important effector end organs are there. One are the smooth muscles of the intestine, including stomach, and the glands present everywhere. Glands are there, secretory glands are there. In the muscles, जैसा कि हम हर जगह देखते हैं, स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी जहां कहीं भी है, दे आर नॉट कंप्लीटली रिलैक्स ऑलवेज, दे आर नॉट कंप्लीटली कंस्ट्रिक्टेड ऑलवेज. देयर इज अ सर्टेन बेसल टोन
present in all the smooth muscle fibers. A state of partial contraction is there, that is called as the basal tone in the smooth muscle fibers. That basal tone is decreased by the sympathetic fibers. मसल रिलैक्स होती है, ठीक है. उसके अलावा decrease in the motility, peristaltic movement, segmental movement, they are decreased by the sympathetic. And sphincter tone is increased. इसका मतलब GIT के ओवरऑल मूवमेंट घट जाएंगे और फूड का मूवमेंट आगे बढ़ना कम हो जाएगा, GIT रिलैक्स हो जाएगी. क्योंकि आपकी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ये सब होना चाहिए. You don't feel like going for the toilet at all. That has to be inhibited. That is the effect of the sympathetic. So decrease in the basal tone, decrease in the motility, increase in the sphincter tone, and decrease all secretions. Because of the vasoconstriction, secretions are decreased by sympathetic. On the other hand, because most of the part of the gut are supplied by vagus nerve, ऊपर का और लार्ज इंटेस्टाइन का आधा हिस्सा वेगस नर्व से सप्लाई होता है और जो नीचे का हिस्सा है वो आपके सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक से सप्लाई होता है, सैक्रल 2, 3, 4. द इफेक्ट इज इंक्रीज इन द बेसल टोन इज देयर. बेसल टोन बढ़ जाता है. Increase in the basal tone is there. Increased peristaltic movements are there. पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाती है, बेसल टोन बढ़ गया, उसके ऊपर पेरिस्टाल्सिस पहले भी चल रही है, बट व्हेन द बेसल टोन इंक्रीजेस, ये टोन बढ़ के यहाँ आ गया और पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट भी बढ़ गए, दोनों चीजें बढ़ गई. तो इंक्रीज इन द बेसल टोन इज देयर, इंक्रीज मोटिलिटी, पेरिस्टाल्सिस इज देयर, स्फिंक्टर टोन डिक्रीज होता है. तो अगर मूवमेंट बढ़ रहे हैं तो स्फिंक्टर रिलैक्स होना चाहिए जिससे कंटेंट आगे बढ़ सके. And all secretions are increased. So parasympathetic system is a system of digestion. It has the process of digestion. Gallbladder, sympathetic causes relaxation. Vagus nerve causes contraction of the gallbladder and release of bile into intestine. Urinary bladder is an important area for interaction of both sympathetic and parasympathetic. Sympathetic supply specific part of the bladder that is known as ट्राइगोन. ब्लैडर का ट्राइगोन कहलाता है. ब्लैडर को अगर अंदर से खोल के आप एनाटॉमी में देखोगे तो अंदर 2 यूरेटर आ रहे हैं, ऊपर से किडनी से दोनों तरफ 2 यूरेटर आ रहे हैं और नीचे से यूरिथ्रा निकल रही है, तो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनता है. दैट ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर. दैट ट्राइगोन इज रिचली सप्लाइड बाय द सिंपैथेटिक फाइबर, while the rest of the muscles of the urinary bladder they are known as detrusor muscles. उनको नाम दिया है detrusor muscles. So trigone is mainly supplied by the sympathetic fibers and there is a contraction of the trigone. ट्राइगोन का कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो किडनी यूरिनरी ब्लैडर का जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है, रोकता है जो वहां पे, उसका टोन बढ़ जाता है. स्फिंक्टर का टोन बढ़ता है, ट्राइगोन कॉन्ट्रैक्ट करता है. इसका मतलब यह है कि आप यूरिन नहीं जा पाएंगे. द एंड देयर इज स्लाइट रिलैक्सेशन ऑफ द डिट्रूसर मसल्स. So the urge to pass the urine will disappear for some time. When sympathetics are stimulated, urge to pass the urination will decrease because of increased tone of the internal sphincter or the bladder neck जिसको हम बोलते हैं. तो bladder neck पे टोन बढ़ जाएगा. There will be contraction of the trigone and relaxation of the detrusor muscle. By the parasympathetic, which is mainly supplied by the sacral parasympathetic nerve, S2, 3, 4 तक सप्लाई आ रही है यूरिनरी ब्लैडर को, वेगस नहीं जाती वहां पे. तो स्टिमुलेशन ऑफ द सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक विल कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिट्रूसर मसल एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल स्फिंक्टर so that the process of micturition starts. Voiding of the urine will take place because of the detrusor contraction. Then ureters, motility and tone by sympathetics is increased. पैरासिम्पैथेटिक का वेरिएबल इफेक्ट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. सप्लाई विल अगेन बाय द सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक नर्व. यूट्रस, इफेक्ट ऑन द यूट्रस of both sympathetic and parasympathetic depend upon its conditions whether the uterus is gravid uterus, that is containing fetus, or not containing fetus. Okay, that will determine the effect of the sympathetic and parasympathetic. In case of sympathetic, as you can see, the gravid uterus contract. इसका मतलब अगर यूट्रस में फीटस है तो सिंपैथेटिक उसका कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट वेरिएबल है.
हो भी सकता है, नहीं भी हो, डिपेंड करेगा। इन मेल सेक्स ऑर्गन सिंपैथेटिक कॉजेज इजैकुलेशन व्हाइल द पैरासिम्पैथेटिक कॉजेज इरेक्शन। दोनों का अलग अलग रोल है, सिनर्जिस्टिक रोल इज देयर। स्किन पाइलोइरेक्टर मसल सिंपैथेटिक, जब आपको डर लगता है तो क्या होता है, बाल खड़े हो जाते हैं शरीर के, स्किन के बाल खड़े हो जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, पाइलोइरेक्शन। नहीं, हिंदी में क्या कहते हैं, रोंगटे खड़े हो गए। तो रोंगटे खड़े करने का काम सिंपैथेटिक का है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पाइलोइरेक्टर मसल इज बाय सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक हैज गॉट नो इफेक्ट। स्वेट ग्लैंड सिंपैथेटिक जब स्टिमुलेट होता है, आप जब एग्जाम देने जाते हो वाइवा में बाहर खड़े खड़े सुनते हो यार अंदर क्या पूछा जा रहा है, यू आर टेंस, मगर वो सारी बॉडी में आपके पसीना नहीं आता, आपके चेहरे पे ज्यादा पसीना आता है, बगल में ज्यादा पसीना आता है। सो देयर आर लोकलाइज्ड इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक इज देयर एज फार एज स्वेटिंग इज कंसर्न। So sympathetic stimulation has got a localized effect because the sweating actually is not under direct control of the autonomic nervous system. It is under control of the hypothalamus. टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म के कंट्रोल में है ये, इसलिए सिंपैथेटिक का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। और इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक का भी कोई खास इफेक्ट नहीं है, बट देयर इज एसिटाइल कोलिन विल कॉज ऑफ कोर्स vasodilation, increase sweating will be there because cholinergic fibers are there. Splenic contraction in the animals, it is very prominent. Splenic contraction is there because of sympathetic, because that will help to dislodge amount of the blood present in the spleen toward the central circulation where it is required to be diverted to the more vital organs of the body under emergency conditions. Parasympathetic, no effect is there. Adrenal medulla is a ganglion of sympathetic itself. So whenever sympathetics are stimulated, adrenal medulla will release adrenaline, noradrenaline and dopamine into the circulation. So when sympathetics are stimulated, effects are there at the sympathetic post-ganglion nerve endings also, as well as all those areas which does not have innervation will be affected by the same, by release of these chemical substances. Adrenaline सिंपैथेटिक से रिलीज नहीं हो रही, एड्रिनल मेडुला से रिलीज हो रही है, सारी बॉडी में सर्कुलेट करेगी और वो सारे इफेक्ट को एक्सेंचुएट करेगी जो ऑलरेडी चल रहे हैं, या जहां पे नर्व फाइबर नहीं जा रहे वहां पे भी इफेक्ट आएगा सिंपैथेटिक का। स्पेसिफिकली लीवर में आता है वो। सो एड्रिनल मेडुला प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स आर देयर एंड दे विल कॉज रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइन्स इनटू द सर्कुलेशन, ब्रिंगिंग द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक। इन द लीवर अगेन सिंपैथेटिक हैव इंपॉर्टेंट इफेक्ट, causes glycogenolysis. It means it will cause increase in the blood sugar level, which will be available to the more vital organs like brain and muscles during the emergency situation or activity. Pancreatic juice sympathetic decreases. Parasympathetic of course will always cause increase in the pancreatic juice secretion. Sympathetic decrease secretion of the insulin and glycagon. Parasympathetic increase secretion of insulin and glycagon. Salivary glands के बारे में बात कर चुके हैं. When sympathetics are stimulated, thick viscous secretion is there because of the vasoconstriction. Profuse secretion by the parasympathetic nervous system. Which nerve supplies salivary glands? Parasympathetic. Parotid gland को सप्लाई कहां से आती है पैरासिम्पैथेटिक की? Anybody? Parotid gland नहीं, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड, फेशियल नर्व, सुपीरियर सलाइवरी गैंग्लिया. ठीक है, सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस नॉट गैंग्लिया. वाइल यहां जो आता है वो इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस बाय द 9th क्रेनियल नर्व के थ्रू आ रहा है. ठीक है, सो पैरासिम्पैथेटिक सिक्रेशन, सिंपैथेटिक डिक्रीज सिक्रेशन. एडिपोज टिश्यू में पैरासिम्पैथेटिक का कोई इफेक्ट नहीं है. सिंपैथेटिक है व्हाट इफेक्ट ऑफ लाइपोलाइसिस एक्टिंग वाया दी बीटा 3 रिसेप्टर. ये और कहीं नहीं होते बॉडी में, एडिपोज टिश्यू में ही होते हैं सिर्फ. जेजी सेल्स नाम सुना है, किडनी में होते हैं. जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स. देयर इज इंपॉर्टेंट रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इन द बॉडी फॉर वेरियस एक्शंस आर देयर. सो सिंपैथेटिक जब भी स्टिमुलेट होंगे
रेनिन सिक्रेशन बढ़ेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, और भी इफेक्ट आएंगे इसके साथ। पीनियल ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ेगा, मेलाटोनिन का सिक्रेशन बढ़ेगा, पैरासिम्पैथेटिक का कोई इफेक्ट नहीं। ये इफेक्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो पूछ लेना। ये एक नाम आया है, हम कभी कभी शॉर्ट नोट पूछते हैं इसका, हॉर्नर सिंड्रोम। इसमें एच साइलेंट नहीं है, बोलना पड़ता है इसको, हॉर्नर्स नहीं है, ये हॉर्नर सिंड्रोम है। ये नाम है हॉर्नर। इसके कुछ फीचर्स है, मगर पहले दिया है कि ये कारण क्या हो सकता है इसका, हॉर्नर सिंड्रोम का। हॉर्नर सिंड्रोम अराइजेज बिकॉज ऑफ डैमेज टू द सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ द फेस एरिया। इस एरिया की जो सिंपैथेटिक सप्लाई जा रही है उसको अगर डैमेज कर दिया जाए तो कुछ फीचर्स आते हैं ऐसे पर्सन में जिनको हम हॉर्नर सिंड्रोम में डाल सकते हैं। ठीक है, तो कहां से आती है ये सप्लाई? सप्लाई टू द फेस कम्स फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। सिंपैथेटिक की नेक में 3 गैंग्लिया बताई थी, सुपीरियर सर्वाइकल, मिडिल सर्वाइकल एंड इंफीरियर सर्वाइकल, विच में भी स्ट्रीलेट गैंग्लिया। तो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया से उसके जो ब्लड वेसल्स है उसके साथ में सप्लाई जा रही है, सारे फेस को सप्लाई कर रही है और आंख को भी सप्लाई कर रही है, ब्लड वेसल्स को भी कर रही है। तो इफ दैट इज डैमेज, मगर ये डैमेज क्यों हो जाएगी? मजाक थोड़ी है, यहां क्या डैमेज आएगा? आता है ड्यू टू मैलिग्नेंसी ऑफ द सर्वाइकल लिम्फ नोड। अगर यहाँ पे कैंसर है लिम्फ ग्लैंड्स में तो यहाँ पे प्रेस कर सकता है, दबाव डाल सकता है, तो फाइबर डैमेज हो जाएंगे, गैंग्लिया डैमेज हो जाएगी। सेकेंडरी लिम्फ नोड, कैंसर कहीं और है मगर वो मेटास्प्रेड करता है सबसे पहले रीजनल लिम्फ नोड के अंदर और वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है और यहाँ पे फैल के उसको डैमेज कर सकता है। ट्यूमर्स ऑफ द लंग, वो भी सेकेंडरी जाती है यहाँ पे। एंड एनी अदर कॉज, ट्रॉमेटिक कॉज कैन बी देयर विच कॉजेज डैमेज टू द सिंपैथेटिक फाइबर। तो इसके डैमेज होने से क्या होगा, क्या फीचर्स आएंगे? पहला फीचर होगा टोसिस। टोसिस का मतलब ये है कि ये जैसे मान लो मेरे राइट साइड में डैमेज हुआ तो ये आंख आधी बंद हो जाएगी, ये आंख जो है पलकें नीचे गिर जाएंगी, आधी बंद हो जाएगी, ये पूरी खुली दिखेगी, ये आधी खुली दिखेगी। दैट इज टोसिस। क्यों हुई ये? बिकॉज इन द लिड्स, अपर लिड्स, टार्सल मसल्स आर देयर। टार्सल प्लेट होती है कनेक्टिव टिश्यू की, उसको ऊपर रखने के लिए टार्सल मसल्स होती है। दे आर इनवॉलंटरी मसल्स सप्लाइड बाय द सिंपैथेटिक फाइबर। तो वो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट रहती है तो आंखें पूरी खुली रहती है, टार्सल प्लेट को ऊपर रखती है वो। अगर वो मसल नर्व सप्लाई डैमेज हो गई, मसल पैरालाइज हो गई, टार्सल प्लेट को ऊपर नहीं रख पाएगी, वो नीचे ले आएगी वेट की वजह से और आंखें आधी बंद हो जाएगी। दैट इज नोन एज टोसिस, मीन्स ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड बिकॉज ऑफ द पैरालिसिस ऑफ द म्यूलर मसल्स। मसल का नाम है म्यूलर मसल। देन सेकेंड फीचर इज मियोसिस। वो सेल डिवीजन वाला मियोसिस नहीं है, ये मियोसिस इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। ये जो प्यूपिलरी अपर्चर दिखता है खाली जगह आइरिस डायफ्राम के अंदर जिससे कि लाइट जाती है अंदर, वो छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? Why the pupillary aperture will decrease? सिंपैथेटिक तो पैरालाइज हो गए, तो डिक्रीज क्यों हुआ? डिक्रीज क्यों हुआ? प्यूपिलरी एपर्चर डिक्रीज क्यों हुआ? अनअपोज्ड एक्शन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। वो हमने शुरू में समझाया था, टोन क्या होता है, सिंपैथेटिक टोन, पैरासिम्पैथेटिक टोन। यहाँ के पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट नहीं किया मगर अनअपोज्ड एक्शन हो गया। पहला सिंपैथेटिक उसको अपोज कर रहा था तो एक नॉर्मल डायमीटर मेंटेन था उसका, वो अपोजिंग इफेक्ट खत्म हो गया। पैरासिम्पैथेटिक टोन ऑलरेडी है और उस टोन की वजह से अपर्चर छोटा हो गया। दैट इज नोन एज द मियोसिस। डायलेटर प्यूपिली मसल इज पैरालाइज्ड ऑफ कोर्स सिंपैथेटिक की वजह से। थर्ड इज एनिट्रोसिस। इट रेफर्स टू द स्वेटिंग। उस आधे पार्ट में जहां नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक की खत्म हो गई वहां पे स्वेटिंग बंद हो गई तो ये एरिया ड्राई हो गया। एनिड्रोसिस मीन ड्राइनेस ऑफ द एरिया ऑफ द फेस वेयर द नर्व सप्लाई इज डैमेज। एंड लास्टली रेडनेस ऑन द अफेक्टेड साइड, क्योंकि सिंपैथेटिक्स का काम कुटिनियस ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना होता है
और सिंपैथेटिक खत्म हो गए तो वेसल पैसिवली डायलेट हो गई। डायलेट होने से वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ गई और यहाँ चेहरे पे रेडनेस ज्यादा आ गई। तो रेडनेस, एनहिड्रोसिस, मियोसिस एंड ड्रूपिंग ऑफ द पीपल आर द फीचर्स ऑफ द हॉर्नर सिंड्रोम। अब आते हैं ऑटोनोमिक, ये सारे इफरेंट एक्शन से ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस आर विसरल रिफ्लेक्सेस मेनली। So any reflex, as you remember, must have 5 components. हर रिसेप्टर के 5 कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या होता है हर रिफ्लेक्स के? रिसेप्टर हैज टू बी देयर, एफरेंट नर्व हैज टू बी देयर, सेंट्रल प्रोसेसर हैज टू बी देयर, efferent nerve has to be there, and effector end organ has to be there. 5 components are there of any reflex arc in the body. Of course, these reflexes are subconscious and they are regulating the blood pressure, digestive functions, filling and emptying of the bladder and defecation. ये आपका रिफ्लेक्स आर्क है ऑटोनॉमिक का। इसका हम कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं, डायग्राम बनवा लेते हैं। ये रिसेप्टर है, ये सेंसरी न्यूरॉन है। सेल बॉडी is located in the dorsal root ganglia most of the time. Cell body is located mostly in the dorsal root ganglia, but it may be located in this autonomic ganglia also. But most of the time it is in the dorsal root ganglia. तो ये आपका गैंग्लिया आ गया, ये सेंटर न्यूरॉन आ गए, दोनों इफेक्टर कनेक्टर न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन है। ये आपका गैंग्लिया आ गया, ये आपका इफेक्टर एंड ऑर्गन आ गया, और ये आपके रेस्पॉन्स आ गया। सो दिस इज द ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स आर्क कंसिस्टिंग ऑफ 5 कंपोनेंट्स। अब ये कौन कौन सी ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस हैं, उनके नाम है ये, सिर्फ हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना टाइम भी नहीं है शायद हमारे पास में, अभी तो बहुत टाइम। लाइट रिफ्लेक्स इज देयर। लाइट रिफ्लेक्स का क्या मतलब समझते हो? अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट द लाइट रिफ्लेक्स? बोलो है? एकदम से क्यों? अभी भी आ रही है लाइट तो उससे क्या होगा? लाइट ने आंख में क्या, आंख यूं थोड़ी हो जाएगी, बंद हो जाएगी आंख? अभी तो खुली हुई है, लाइट जा भी रही है, हैं? दोनों ही होंगे? नहीं, लाइट डाल दिया आपने इसका, वेरी गुड, that is the effect. So when you throw light into the eye, there is pupillary constriction, that is light reflex. Of course there is a pathway is there, we will not deal with this here, वो हम स्पेशल साइंस में पढ़ाएंगे आपको, तो उसको हम लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं। सेकेंड इज accommodation reflex. Light reflex is there, accommodation reflex mainly involve the third cranial nerve and the second cranial nerve, second and third. Cilio-spinal reflex is there. यहाँ पे अगर पिंच करें नेप ऑफ द नेक पे तो प्यूपिलरी डायलेटेशन हो जाता है, उसको सीलियो-स्पाइनल कहते हैं। ये सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स है। ऑक्यूलोकार्डियक रिफ्लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इससे सफर कर चुका एक बार। ऑक्यूलोकार्डियक मतलब आंख से आ रही है और हार्ट पे इफेक्ट कर रही है। इन मेनी सेंसिटिव पर्सन, इफ यू प्रेस टू हार्ड ओवर द आई बॉल पे अगर ज्यादा जोर से दबाव डालें तो वेगस को स्टिमुलेट करके रिफ्लेक्स दे और हार्ट के फंक्शन को डिप्रेस कर देती है। देयर में भी सीवियर ब्रेडिकार्डिया, आदमी को चक्कर आने लग सकते हैं और गिर भी सकता है। दैट इज ऑक्यूलोकार्डियक रिफ्लेक्स, प्रेसिंग ओवर द आई बॉल रिजल्टिंग इनटू ब्रेडिकार्डिया, ऑक्यूलोकार्डियक। ये वेगस से मीडिएट हो रहा है। देन रिफ्लेक्सेस ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत सारी हैं जो ब्लड प्रेशर और कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने का काम आती है। ये सीबीएस में पढ़ेंगे हम इनको। रिफ्लेक्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पढ़ाया थोड़ी अभी, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे अभी, ठीक है ना, इसको भी हम डिटेल आएगी बाद में। जीआईटी की रिफ्लेक्सेज है, गैस्ट्रो इलियक रिफ्लेक्स स्टमक से आती है, छोटे इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स स्टमक से आती है और लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते होंगे साहब जो ही मैं खाना खाता हूँ हाजित होती जानेगी, इंक्रीज इन द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स इज देयर, gastroileal reflex is there, ileocolic reflex can be there. They are all mediated by the sympathetic or autonomic nervous system. Micturition reflex of course is an autonomic system.
and defecation reflex. All are the autonomic reflexes. Now this enteric nervous system, सरप्राइजिंग, इंटेस्टाइन्स के अंदर जो कि 22 फीट लंबी हैं, उनमें इतने सारे ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स हैं जितने पूरी स्पाइनल कॉर्ड में नहीं है. दैट इज द टाइप ऑफ द वेरी फाइन कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ओवर द एक्टिविटी ऑफ द जीआईटी. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पुराने लोग कहते हैं ना कब्जी सबमर्ज की बीमारी है, वो यहाँ पे इफेक्ट करती है. सो फाइन कंट्रोल इज देयर ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन. So situated in the walls of the GIT, that is known as enteric nervous system. Neurons may be 100 million neurons may be there in the whole GIT, and there are two sites where these neurons and nerve fibers are found. One is between the two muscle layers of the intestine. ध्यान हो अगर पढ़ा हो बताया हो अब तक 12वीं क्लास में इंटेस्टाइन्स में तीन लेयर्स में होती है मसल्स मेनली, मगर दो तो होती हैं. Circularly placed muscle fibers are there and longitudinally placed muscle fibers are there. ठीक है. In between these two muscles of the GIT, there is presence of large number of the neurons of the parasympathetic nervous system. तो parasympathetic nervous system के न्यूरॉन्स सबसे ज्यादा इसके बीच में होते हैं, दोनों मसल्स के बीच में. ठीक है. और फिर आता है अंदर से चलें तो म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मसल्स एंड बाहर की लेयर. तो सब म्यूकोजा में मेनली ब्लड वेसल्स ज्यादा होती हैं. सब म्यूकोजा लेयर ऑफ द इंटेस्टाइन कंटेन ब्लड वेसल्स मोस्टली, एंड इन दैट लेयर आर प्रेजेंट न्यूरॉन्स एंड प्लक्सेस ऑफ द फाइबर्स प्रिडोमिनेटेड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो सब म्यूकोजल प्लक्सेस में या म्यूकोजल प्लक्सेस कंटेन्स मेनली sympathetic innervation and fiber plexus, while in between the muscle fiber of the longitudinal and circular layer parasympathetic fiber predominate. कारण क्या है कि पैरासिम्पैथेटिक मोटर एक्टिविटी को ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, वहां उसकी जरूरत है. सिंपैथेटिक सिक्रीशन को ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, ब्लड वेसल के ब्लड के फ्लो को रेगुलेट कर रहा है, तो वो म्यूकस लेयर में प्रेजेंट है जहां ब्लड वेसल ज्यादा होती है. ओके. सो टू प्लेक्सेस आर देयर. तीन तरह के न्यूरॉन्स हैं. मोटर न्यूरॉन्स आर देयर which supplies the glands and the muscles of the GIT. Sensory neurons are there which receive the information and are responsible for executing various reflexes of the GIT. And of course interneurons are there where the processing of the information is taking place. That's what I have said. Submucosal plexus, sympathetic is predominant. Myenteric or orbital plexus, parasympathetic predominant. तो दोनों मसल्स के बीच में जो प्लेक्सिस है, न्यूरॉन्स हैं, उनको क्या नाम दिया हमने? दे आर नोन एज आइदर मायंटेरिक. माय मीन मसल्स, एंट्रिक मीन एंट्रिक सिस्टम, इंटेस्टाइन. तो इंटेस्टाइन की मसल्स के बीच में जो प्लेक्सिस है वो मायंटेरिक प्लेक्सिस कहलाती है. वहां पैरासिम्पैथेटिक प्रिडोमिनेंस है. सिंपैथेटिक भी होते हैं मगर उतने ज्यादा नहीं होते. एंड सरप्राइजिंगली this enteric nervous system is definitely affected by the higher center or the major activity of the ANS, but it is largely autonomous in itself. खुद अपने आप को ही रेगुलेट करता है ज्यादातर. बाहर से इन्फ्लुएंस होता है मगर उतना ज्यादा नहीं होता. So it is independent largely of the major autonomic nervous system. तो ये जो लोकल सिस्टम है क्या कंट्रोल करता है बेसिकली? व्हाट इट इज डूइंग? एंटेरिक नर्वस सिस्टम इलियो इलियल रिफ्लेक्स, नाम से पता लग रहा होगा क्या करती है ये. इलियो इलियल क्या मतलब निकला बेटा इससे? कौन सी इंटेस्टाइन? छोटी बड़ी? स्मॉल इंटेस्टाइन. बिल्कुल ठीक है. इलियो इलियल, इलियो कॉलिक रिफ्लेक्स, इलियो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स उल्टी चल रही है. इलियो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स इज देयर. गैस्ट्रो इलियल, गैस्ट्रो कॉलिक रिफ्लेक्स इज देयर, एंड these neurons also control the secretion of the local hormones of the GIT, which are known as gut-brain peptides. They are known as gut-brain peptides, regulating the activity of the nervous system also, regulating the activity of the GIT also.
So this enteric nervous system provides additional control of the GIT. It regulates the basal tone, peristalsis, glandular secretion and the vascular tone of course. And its activity is affected. इस ऑटोनोमिक एक्टिविटी जो है ये अफेक्ट हो रही है किससे? हॉर्मोन्स, केमिकल्स, लोकल मेटाबोलाइट and activity of the ANS in general. All can modify the activity of the enteric nervous system. ये भी एक कॉमन तो नहीं है, बाकी आती है, होती है ये बीमारी, हर्शस्प्रुंग्स डिजीज, इसको मेगाकोलोन भी कहते हैं, कभी कभी शॉर्ट नोट आता है इसके बारे में, मेगाकोलोन. दिस इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस and the neurons of those parasympathetic system in specific part of the large intestine. Large intestine का मान लीजिए ये descending colon का part है या सीकम sigmoid colon का part है. यहाँ पे इस एरिया में पैरासिम्पैथेटिक की गैंग्लिया नहीं है, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर नहीं है, बाई बर्थ से ही नहीं है, जेनेटिक डिफेक्ट है ये. तो उसके वजह से क्या होगा, अगर यहाँ वो नर्व फाइबर्स नहीं है तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम नहीं है एंट्रिक. इट मीन्स this part of the gut will remain dilated, it will not contract, peristalsis will not be there, local movement will not be there. So when the food reaches there, it will go collecting there. Food यहाँ पे इकट्ठा होता चला जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि एक्टिविटी नहीं है, उसकी वजह से कोलन डायलेट होता चला जाएगा, उसको हम कह रहे हैं मेगाकोलोन. मेगा मीन्स बढ़ गया, तो मेगाकोलोन इज देयर. Congenital absence of the Orbeck plexus, that is parasympathetic mainly. Absence of peristalsis, mass peristalsis is also not there. Fecal material accumulates, causing dilatation of the colon. So that is known as the megacolon. इसका ट्रीटमेंट एक ही है कि उस हिस्से को निकाल के बाहर कर दिया जाए. The affected part of the colon is removed surgically so that the patient gets relieved of the problem. अभी चूंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम हो रहा है तो इसको भी हम देख लेते हैं. हाँ ये अच्छा है, काम आता है. अच्छा बताओ, ऑपरेशन के पहले जो भी मेजर ऑपरेशन करते हैं जिसमें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है बेहोश करने के लिए, उन पेशेंट्स को एट्रोपिन दी जाती है पहले. व्हाट इज एट्रोपिन? क्यों दे रहे हैं? एट्रोपिन इज अ ड्रग एक्टिंग ऑन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. Why do we give atropine to a patient who is undergoing operation under general anesthesia? कौन से रिसेप्टर ब्लॉक करना चाहते हैं? क्या फायदा होगा उसका? बिल्कुल ठीक है जवाब. फायदा क्या होगा उसका? हवाले का यूज क्यों कर रहे हैं उसको? पैरासिम्पैथेटिक का ब्रोंकियल मसल्स पे क्या एक्शन है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन. और सिक्रेशन को क्या करता है? वो बढ़ाता है, सिक्रेशन को बढ़ाता है. अब जो पेशेंट की सर्जरी होने वाली है, जो डीप एनेस्थीसिया में जा रहा है, जिसको आप मास्क लगा के ऑक्सीजन दे रहे हो, अगर उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वहां पे सिक्रेशन इकट्ठा होना शुरू हो गए या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुआ तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी मरीज के लिए. सो वी वांट टू डिक्रीज द ब्रोंकियल सिक्रेशन एंड वी वांट टू रिलैक्स द ब्रोंकियल मसल्स आल्सो. दैट्स व्हाई एट्रोपिन इज गिवन. इट मींस atropine blocks the muscarinic receptors of the acetylcholine. M2 receptors को ब्लॉक कर दिए. अब सवाल ये है कि ये देने की क्यों जरूरत है? आप सिंपैथेटिक क्यों नहीं दे सकते? सिंपैथेटिक दोगे तो सिक्रेशन भी कम कर देगा और ब्रोंको डायलेशन भी कम कर देगा. मगर एनेस्थीसिया के साथ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कभी नहीं दिया जाता यूजुअली, क्योंकि वो कार्डियक एरिथमिया क्रिएट कर सकता है, हार्ट बंद हो सकता है, तो उसको यूज नहीं करते हम एट्रोपिन यूज करते हैं. So that is the purpose of showing these names of the drug. हालांकि आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे ये सब, मगर यहाँ बताने का यही पर्पस था कि we are having many drugs acting on the autonomic nervous system. दुनिया में एक ग्रुप की ये वो ड्रग्स है जो सबसे ज्यादा काम आती हैं. Most commonly used drugs in the patient are drugs acting on the autonomic nervous system. ठीक है? So sympathomimetics are those drugs which when given to the person mimics the action of the sympathetic nervous system. उनको देने से वैसे एक्शन आएंगे जैसे सिंपैथेटिक को स्टिमुलेट करने से आते हैं. उनको हम सिंपैथोमिमेटिक्स कहते हैं.
और जो सिंपैथेटिक इफेक्ट ब्लॉक कर दे वो सिंपैथोलिटिक एजेंट कहलाते हैं। इसी तरह जो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट मिमिक करते हैं वो पैरासिम्पैथोमिमिक एजेंट कहलाते हैं, और जो ब्लॉक करते हैं वो पैरासिम्पैथोलिटिक एजेंट कहलाते हैं। और चौथी कैटेगरी वो जो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे एक्ट करती है। देयर आर ड्रग्स स्पेसिफिकली एक्टिंग ऑन द ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। इसमें भी एक खास बात है, देयर आर वेरियस ड्रग्स एक्टिंग ऑन द ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। ध्यान दीजिएगा, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एसिटाइलकोलिन है, चाहे वो सिंपैथेटिक की हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो। मगर गैंग्लिया सिंपैथेटिक की चेन के रूप में मौजूद है या 3 एब्डोमेन में मौजूद है। देखिए पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया हर ऑर्गन के अंदर मौजूद है अलग अलग। तो जब भी आप ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को ब्लॉक करने के लिए एक्शन के लिए ड्रग देते हैं तो वो सिंपैथेटिक पे उसका ज्यादा इफेक्ट आता है बजाय पैरासिम्पैथेटिक के। क्यों? पैरासिम्पैथेटिक डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका इफेक्ट उतना नहीं आएगा जितना कि सिंपैथेटिक के ऊपर आएगा। ये मोटी मोटी बात है। सो निकोटीन इन स्मॉल डोजेस एक्ट ऑन द गैंग्लिया एंड इट विल कॉज स्टिमुलेशन द गैंग्लिया। तो गैंग्लिया जब स्टिमुलेट होगी तो क्या एक्सपेक्ट करते हो? इफ यू स्टिमुलेट ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, what major effect you expect in the person? Rise in the blood pressure. स्मॉल अमाउंट में सिंपैथेटिक को स्टिमुलेट करेगी ये निकोटीन जो है। सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा ब्लड वेसल्स के ऊपर, वाजो कंस्ट्रिक्शन होगा और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ राइज इन द ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन इन द स्मोकर्स इज द निकोटीन। Acetylcholine, as I said, is never used clinically. It is never used. निकोटिनिक रिसेप्टर गैंग्लिया में हम जानते हैं N2 टाइप रिसेप्टर होते हैं। N1 कहाँ होते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो N1 रिसेप्टर फॉर द एसिटाइलकोलिन। निकोटीन गैंग ब्लॉकिंग एजेंट, ठीक है। निकोटीन लार्ज डोजेज में अपने रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, उसका इफेक्ट खत्म कर देगी, तो ब्लॉकिंग हो जाएगा, ब्लड प्रेशर घट जाएगा। हेक्सामिथोनियम, डेकामिथोनियम, दे आर ब्लॉकिंग एजेंट। इनमें से सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स देखिए कहाँ यूज होती है, देख लें, नाम तो बाद में आते रहेंगे। एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, फिनाइलेफ्रिन, आइसोप्रोटेनोल, एल्ब्यूटेरॉल। इनमें सबसे ज्यादा जो ड्रग कॉमनली यूज होती है वो है आपकी फिनाइलेफ्रिन। फिनाइलेफ्रिन बहुत सारे पेशेंट्स में, अब तो बहुत नई दवाइयां आ गई हैं, पहले कम थी, जो एस्थमा से सफर करते थे, सांस भरने लग जाती थी एस्थमा, तो भी यूज ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकियल मसल्स को डायलेट करना। सिंपैथेटिक ड्रग्स देते थे उसमें, सिंपैथोमिमेटिक, आइसोप्रोटीन, फिनाइल एलेनिन, ये दोनों यूज नहीं करते। एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन आर नॉट कॉमनली यूज, जो इनको इंजेक्शन से ही देना पड़ता है, और इंजेक्शन भी ड्रिप के द्वारा जाता है, डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं देते कभी भी, इनका बहुत रेयरली देते हैं, वो हार्ट में देते हैं जब हार्ट बंद हो जाए, अदरवाइज यूज नहीं करते। ऑलवेज गिवन इन द ड्रिप, नेवर डायरेक्ट इंजेक्शन और अदरवाइज। मगर ये फिनाइलेफ्रिन इज ए सिंथेटिक एनालॉग, इसको देते हैं, काम में आती है। आइसोप्रोटेनोल, एल्ब्यूटेरॉल, दे आर डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग, ठीक है। फिर इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स भी हैं जो सिंपैथेटिक के इफेक्ट को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। ये सब फार्माकोलॉजी में पढ़ो, मैं नाम वैसे ही ले आया हूं। बीटा ब्लॉकर, ये सबसे कॉमन काम आने वाली दवाई है, प्रोपेनोलॉल। इट इज स्पेसिफिकली एक्टिंग ऑन द बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है ये। इफ यू ब्लॉक बीटा 1 रिसेप्टर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? व्हाट द बीटा 1 रिसेप्टर्स आर डूइंग? वेयर दे आर प्रेजेंट? हार्ट में होते हैं। क्या कर रहे हैं ये? हार्ट रेट बढ़ा रहे हैं, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं। अब मान लीजिए किसी के हार्ट में डैमेज हो गया, मायोकार्ड इंफार्क्शन हो गया, बाईपास सर्जरी हुई है, स्टेंट लगा हुआ है, आप उस हार्ट को रेस्ट देना चाहेंगे, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर भी कम करना चाहेंगे जिससे कि हार्ट को कम काम करना पड़े, और हार्ट को भी रेस्ट देना चाहेंगे। तो उसमें आप क्या करेंगे? बीटा 1 रिसेप्टर को आप अगर इनहिबिट कर दें उन पे एक्टिविटी, तो हार्ट को थोड़ा रेस्ट मिलेगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, दैट विल हेल्प। So beta 1 blocker are the most commonly used drugs in the cardiac patient to decrease the workload on the heart. Most important commonly used drug is the metoprolol.
एटेनोल, मेटाप्रोलोल आर बीटा 1 सेलेक्टिव। बाकी बीटा 2 रिसेप्टर पे इनका बहुत कम एक्शन आता है, अल्फा पे नहीं आता, सिर्फ बीटा 1 को ब्लॉक करते हैं, इसलिए ये ज्यादा काम में लिए जाते हैं। ठीक है, बाकी को छोड़ दें, यहां आ जाते हैं पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग छोड़ दीजिए। ये दो नाम आपने सुने हुए होंगे, ये दो नाम पहले सुने हैं क्या? नहीं पढ़ाए होंगे। मसल नर्व के अंदर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर, नहीं? अमिताभ बच्चन को कौन सी बीमारी हुई थी? मायस्थीनिया ग्रेविस, बिल्कुल ठीक है। मायो मीन्स मसल, एस्थीनिया मीन्स वीकनेस, ग्रेविस मीन्स ग्रेट, ग्रेट वीकनेस ऑफ द मसल, स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं। तो उस वीकनेस को ये सब पूछते हैं, बायोमा में भी पूछते हैं ये मायस्थीनिया ग्रेविस को, और इसका कारण भी पूछते हैं और इसका इलाज भी पूछते हैं। और इलाज है आपका नियोस्टिग्मिन एंड फाइजोस्टिग्मिन। ठीक है, दे आर एक्टिंग एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दे आर एंटी कोलिन एस्ट्रेज ड्रग्स। कोलिन एस्ट्रेज क्या करता है? एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर एसिटाइल कोलिन पहले से ही कम निकल रही है और जो निकल रही है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा, तो मसल तो काम ही नहीं करेंगी, एक्साइट ही नहीं होंगी, नहीं, आपका रिसेप्टर पोटेंशियल ही नहीं बनेगा वहां पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। तो हम चाहते हैं कि एसिटाइल कोलिन जो थोड़ी बहुत बन रही है वो एक्यूमुलेट हो वहां पे, जिससे उसका एक्शन आता रहे मसल के ऊपर। तो दीज आर द ड्रग्स which blocks that enzyme which causes destruction of the acetylcholine. So they are choline esterase, anti-choline esterase drugs, neostigmine and fiseostigmine. They constitute an effective therapy for the asthenia gravis. और ये पैरासिम्पैथिक लिटिक एजेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एट्रोपिन, और ये भी काम आती थी पहले, ज्यादा आती थी, आजकल ये काम आती है। जिनके भी चश्मा लग रहा है ध्यान दो, उसपे पहले प्यूपिल डायलेट करता है डॉक्टर, आंख में चश्मे का नंबर देने के लिए पहले प्यूपिल डायलेट करता है। तो डायलेट करने के लिए दोनों ही सिस्टम काम में ले सकते हैं। हमने देखा था ऑटोनॉमी का इफेक्ट, सिंपैथेटिक डायलेट करता है, पैरासिम्पैथिक कंस्ट्रिक्ट करता है। सिंपैथेटिक डायलेटर अगर यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत देर तक रहता है, तो काफी देर तक धुंधला दिखेगा, इसलिए यूज नहीं करते। पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट थोड़ी देर के लिए रहता है, तो उसके ड्रग्स जो ब्लॉक करने वाली है उनको हम काम में लेते हैं। आजकल जो काम में लेते हैं वो ज्यादातर या तो ट्रोपिकामाइड लेते हैं, या उससे भी और बढ़िया दवाइयां आ गई हैं वो काम में लेते हैं प्यूपिल को डायलेट करने।